अभी एक ट्रेंड चला था 1 second रील विच वुड रीप्ले सो मेनी टाइम्स कि उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए. इसका प्राइस पे करता है ओरिजिनल क्रिएटर जो मेहनत कर रहा है. कोई भी क्रिएटर हो जितना भी बोल दे कि मैं पैशन के लिए कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इट इज़ माई हॉबी, बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, वो हॉबी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी. इट इज़ ऑलवेज अबाउट मनी. देखो ओरिजिनल तो कोई भी नहीं बनाता, ठीक है. आई बिलीव दैट हार्डली 1% ऑफ क्रिएटर्स आर देयर जो ओरिजिनल पे एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर करते हैं. इट्स ऑल कॉपी ऑफ कॉपीज. हाँ. आप उस पर कंटेंट क्रिएट करो और आपको 1 महीने 2 महीने या मे बी 6 महीने में पैसे मिलना शुरू हो जाए. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. द ईयर ऑफ 2015, एज मच एज आई नो, इंटरनेट को इतना ईज आउट कर दिया था. जस्ट इन 5 years द क्रिएटर्स वर मोर दैन 8 million. आज अगर हम 2024 की बात करते हैं, दिस फिगर ऑफ 80 lakh इज नाउ मोर दैन 1.5 crore. We'll start with a short introduction of who is Lavesh Vaswani. Well, I'm Lavesh Vaswani. As you said, I'm from Bhopal, Madhya Pradesh. I'm 30 years old. I'm a proud son, proud husband, and a proud father of a 2-year-old daughter. And I'm a content creator. I'm involved in education sector since 2015. I have been in coaching business. I have worked with government agencies as well. I used to have my own school as well. And currently I'm a mainline content creator working for some corporate companies. I'm working for Seco since 2 years, I guess. Since 2013 when I started my career, I always wanted to be like मेरे को 2-4 काम करने हैं, मेरा ये भी रहे. And currently I'm all involved in 3 different sectors. Okay. I'm in reality sector, I'm in financial sector, and I'm in content creation as well. Content creation is my mainline work. I take it as a business. And that's what I'm planning to take it on the next level in next 5 years. When you say you're a creator, what platforms are you on? I'm only on Facebook, Instagram and YouTube, but I'm not active on those platforms. See, in my point of view, इंडिया में 2 टाइप के क्रिएटर्स इवॉल्व करते हैं आज के टाइम पे. एक डायरेक्ट रहता है, एक इनडायरेक्ट रहता है. हमें सिर्फ डायरेक्ट दिखता है, ठीक है. डायरेक्ट यानी कि आप अगर फेसबुक पे आपके पास ऑडियंस है, यूट्यूब पे ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे है, तो यू आर अ क्रिएटर. आई एम वर्किंग विद मोर देन 40+ कॉर्पोरेट कंपनीज. आई टेक देयर प्रोजेक्ट्स एंड आई एम अ इनडायरेक्ट क्रिएटर, you can say that. Like for Seco I am working, so there are many more clients for whom I am working. Mainly I am working for the corporate companies, like it's like Zensar Technology, Pixel Creations, and there are many more than that. If you do not have social media presence, how do you land up getting brands or big companies to come to you and say ki make this video for us? So I believe there are 3 sources. First, like I am having my own courses on various tech platforms like Udemy, Skillshare. So there are many corporate clients, many brands. They are approaching me from that place. Like we have seen your course and we want you to train our N number of audience via video creations and all. Second, there are few agencies from which you are connected. So they bring you certain kind of clients. Yeah. And definitely the last one is mouth publicity. Like आपने अपना कंटेंट कैसे बनाया, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन कर रहे हो, तो हमें भी करवाना है ऑल इन ऑल. देखिए बेसिकली क्या होता है, दिस इनडायरेक्ट क्रिएशन पार्ट ऑफ बिजनेस इज समथिंग विच वॉज नॉट यूज टू बी देयर. अभी पिछले 2-3 सालों से वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है. आप अगर एक गैप को समझें, कोविड के पहले देर आर thousands of companies in India where thousands of employees are working in their offices. Right. ठीक है. कोविड के बाद आज भी more than 70% of companies ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है. दे आर प्रोवाइडिंग हाइब्रिड मॉडल और समथिंग एंड ऑल. बट दे हैव टू ट्रेन देयर स्टाफ एवरी क्वार्टर और मे बी एवरी ईयर, लाइक दैट, जैसा उनका पेस रहता है. तो उनको ट्रेन करने के लिए दे नीड फेस, दे नीड ट्रेनर्स. अब क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं, लेट्स से कि एक कंपनी है XYZ, वी टेक एन एग्जांपल कि XYZ कंपनी है, उनके दे हैव 500 एम्प्लॉयज़, दे हैव 1000 एम्प्लॉयज़. तो सबको तो वो प्रमोशन नहीं दे सकते, ठीक है. दे कैन गिव प्रमोशन टू ओनली 2% और 3% ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टाफ? सो देयर इज अ गैप ऑफ ट्रेनिंग दोज एम्प्लॉयज़. तो पहले जो ये गैप फिल होता था, पहले वो एक ट्रेनर होता था, कॉर्पोरेट ट्रेनर होता था, जो वहाँ पर जाकर उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता था. बट क्योंकि अभी हाइब्रिड मॉडल्स पे काम हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो घर से ही काम कर रही हैं,
तो उनको ट्रेनिंग्स तो फिर भी प्रोवाइड करनी है. तो वीडियो मॉड्यूल्स के थ्रू Yes. ट्रेनिंग हो So रही है. there are companies who approach me, their HR approaches me हम्म, कि सर हमारे पास ये 100 एम्प्लॉयज़ का एक बैच है हम्म, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हायरकी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इन द टीम मैनेजमेंट एंड ऑल. हम आप उन 100 एम्प्लॉयज़ को उस पर ट्रेनिंग दो, अच्छा. उनको उस पर बेटर बनाओ आप. हम्म, सो दे गिव मी 2 ऑप्शंस कि या तो आप उसको लाइव ट्रेनिंग दो या तो आप उनको वीडियो फॉर्मेट्स पे दो. अच्छा. कंपनीज खुद उनको वीडियो फॉर्मेट पे प्रेफर करती हैं क्योंकि कंपनीज को वो इकोनॉमिक पड़ता है. कंपनीज मुझसे वो कोर्स तैयार करवाएंगी, ठीक है. देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ मे बी अ मंथ और मे बी 2 months. दे आस्क मी टू गेट अ कोर्स डन. आई विल क्रिएट अ कोर्स, आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, HR विल अप्रूव दैट, देन उस पर स्क्रिप्टिंग होगी, HR विल अप्रूव दैट, देन उस पर फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, HR विल अप्रूव दैट, फिर उस पर सेकेंड ड्राफ्ट बनेगा, HR विल अप्रूव दैट. सो इट इज़ अ एंटायर ड्यूरेशन ऑफ अ मंथ और मे बी 50 days. हमने उनको वो कोर्स डिलीवर कर दिया. फिर उसके बाद वो उनका कंपनीज का खुद का एक ऐप प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं. सो कंपनीज उनके थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं. So this is, I believe, a different level of content creation, which is becoming a huge business in country like India, because there is a huge opportunities. और I believe कि the gap is very big. आप उसको fulfill कर सकते हो, and the creators, you know, जो इस टाइप का काम करते हैं, are very limited in India. तो I am involved in that sector. राइट. तो क्या ऐसा हमेशा होता है कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट? यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन टीचिंग प्रोफेशनल्स विच विल अलाउ यू देन टू क्रिएट दोज वीडियोज़, राइट? तो वैसे ही अगर किसी को लेट्स से कि हमारे ऑडियंस में या अपने हमारे यूज़र्स में कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई टैलेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट ऑल अदर एवेन्यूज डू यू थिंक आर देयर? क्योंकि हर कोई तो सोशल मीडिया पे फेमस नहीं हो रहा है. नो बडी लाइक नॉट एवरीबडी इज़ फिगरिंग आउट कि कैसे हो जाए मेरे 1 lakh followers. So what do you think are the other avenues where they can go field? We need to, you know, first select our target. That I want to get a business from this content creation, or I want the fame from this content creation. That thing should be defined right on an initial basis. ठीक है. जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक क्रिएटर सिर्फ घूमता रहेगा. ठीक है. उसको दिख रहा है कि यार इसके यू नो दैट गाय इज हैविंग 1 lakh फॉलोवर्स और मे बी 1 million फॉलोवर्स, मेरे को भी वैसा बनना है. लेकिन जब तक आपका खुद का विजन क्लियर नहीं है, जब तक आपका खुद का गोल क्लियर नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब इनिशियली माई गोल वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू जनरेट बिजनेस फ्रॉम माई कंटेंट क्रिएशन. राइट. सो आई यू नो प्रेफर दैट पाथ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द थिंग विच आई एम डूइंग, as a creator they have many options. Like they can create their audience or they can, you know, create their presence on social media, which everybody knows. But there are many platforms, I guess, like like Udemy, like Skillshare. ठीक है. So they can create content for those platforms as well, and it can be monetized on an initial basis itself. Right. So on a direct or indirect basis, it's you know, it motivates the creator कि हाँ हमें पैसा मिल रहा है. राइट. सी आज के टाइम पे कोई भी क्रिएटर अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहा है तो दे डोंट डू देयर स्टडी. सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इज वेरी ल्यूक्रेटिव. दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप जब उसके लिए कंटेंट क्रिएट करने जाते हो, आपको उसकी मेहनत समझ में आती है, तो आधे ऑडियंस तो पहले ही पीछे हो जाती है. ठीक है. बाकी जो बची हुई आधी ऑडियंस है जो उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रही है, वो या तो एल्गोरिथम को नहीं समझना चाह रही है, नहीं समझ पा रही है. देयर इज अ गैप कि वो उसको समझना नहीं चाह रही. उनको पता ही नहीं कि एल्गोरिथम होता क्या है. ठीक है. उनको दिख रहा है बस मेरे को वीडियो अपलोड करना है. 1 महीने में जब उनको रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, ठीक है, उनको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, उनको फैन फॉलोइंग नहीं मिलेगी, तो वो और ज़्यादा कम होते जाते हैं. एंड दिस इज़ वन रीज़न कि कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा आज के टाइम पे जो बिजनेस है इंडिया में बहुत क्लटर्ड हो गया है. ठीक है. यू गो टू इंस्टाग्राम, यू गो टू यूट्यूब, there are millions of followers available, but very few of them are successful. Right. ठीक है. क्योंकि जो सक्सेसफुल है उन्होंने उसको क्रैक कर लिया है. दे नो क्या है कि इसको यूज कैसे करना है, एंड दे आर डूइंग इट ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस. आप अगर सोशल मीडिया को हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट योर प्रेजेंस. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि आप उसमें यू नो उसको एज अ बिजनेस क्रिएट कर पाओ. So anything takes time, right? So अभी एक ट्रेंड चला था Instagram पे where there was a 1 second video, right? A 1 second reel which would replay so many times कि उस पे इतने views आ गए कि millions of views हो गए. Do you believe that
कोई अगर कंटेंट क्रिएटर क्रिएट कर रहा है तो ट्रेंड्स के साथ मूव करना ज़रूरी है? देखिए, ट्रेंड के साथ डेफिनेटली मूव करना तो ज़रूरी है, बट अगर आप उस पर टोटली रिलाई करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप अगर आज ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हो, आपको उसको नोटिस करने के लिए सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस रखनी है। लेट्स से कि यू आर एक्सप्लोरिंग द रील्स ऑन इंस्टाग्राम, आपने कोई ऐसा रील देखा जिसपे मे बी 5 और 6 मिलियन व्यूज़ हैं। हाँ, आप अगर उस क्रिएटर की फॉलोइंग को देखोगे, इट वुड बी हार्डली 50,000, 20,000, मे बी मोर और मे बी लेस, जबकि व्यू ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी बिग। राइट। सो ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल द टाइम। हाँ, सो मतलब वही है कि ट्रेंड्स पे डांस करोगे तो लॉयल ऑडियंस नॉट गोइंग टू तो वर्क, नहीं इट्स आ नॉट गोइंग टू वर्क। राइट। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे आई बिलीव कि पीपल वांट एंटरटेनमेंट, उन्होंने आपका वीडियो देखा, उन्होंने स्वाइप अप कर दिया, that's it. So trends are not going to work all the time. Definitely it helps you to gain the traction. Definitely it help you to give something to your loyal audience. You are creating the content with the flow of trend, and your loyal audience is going to satisfied with your content. Right. But if you believe that if you want new audience, or if you believe that you are going to gain n number of audience from this particular trend, it is very difficult. It is not going to work. ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे बोलते हैं कि यार ये मेरा पैशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आई एम क्रिएटिंग वीडियोस फॉर यू, बट एट द बॉटम ऑफ इट इजंट इट अबाउट मनी? It is always about money. इट इज ऑलवेज अबाउट इट इज ऑलवेज अबाउट, कोई भी क्रिएटर हो, जितना भी बोल दे कि मैं पैशन के लिए कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इट इज़ माई हॉबी। सी, आप 1 महीना अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हो, 2 महीने कंटिन्यू कर सकते हो, 6 महीने भी कर लोगे, बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, द मोमेंट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग आपको फैन फॉलोइंग नहीं आ रही है, एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द लेवल ऑफ एफर्ट्स जो आप एक वीडियो क्रिएट करने में डाल रहे हो, ठीक है, और उसका आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, वो हॉबी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। राइट। ठीक है, एंड रिटर्न्स इज मेनली अबाउट मनी, बट बहुत से क्रिएटर होते हैं जब पैसा नहीं मिलता लेकिन फैन फॉलोइंग आना शुरू हो जाती है, तो इट इनडायरेक्टली मोटिवेट्स देम कि हाँ ठीक है, आई एम गेटिंग समथिंग, ठीक है, एंड दैट लाइक्स, फॉलोज, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द मोर एंड मोर इट गेट्स लेवल्ड अप, तो क्रिएटर्स आर पुशिंग इट अप, एंड आई बिलीव दैट दिस इज द ओनली रीजन कि यूट्यूब कम्युनिटी ऊपर जा रही है। ठीक है, यूट्यूब आपको कभी पैसा नहीं देता है, इनिशियली तो नहीं दे रहा है, एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग 3,000 और 4,000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम और मिनिमम ऑफ 1,000 फॉलोवर्स, तो क्रिएटर को पता है कि आज मैं जीरो पे हूँ, मेरी हॉबी है, मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। बहुत से क्रिएटर होते हैं जब तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होते हैं पहले ही वो गायब हो जाते हैं। हाँ, सही बात है, बिकॉज टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, एंड आई बिलीव कि अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, in the year of 2015, as much as I know, I was reading a report, India में there were hardly 1 lakh creators, hardly 1 lakh creators in the year of 2015, ठीक है, जिसमें से मेजर क्रिएटर्स बहुत कम थे जो एक्टिवली उस पर लिए कंटेंट बना रहे हैं या उसको एज अ बिजनेस परस्यू कर रहे हैं। एंड 2015-16 was the year जब जियो लॉन्च्ड, एंड दैट वाज द ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन। राइट। ठीक है, जब मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई ने इंटरनेट को इतना ईज आउट कर दिया था कि उसका ग्राफ अगर आप समझें 2020, just in 5 years the creators were more than, as much as I remember, 8 millions, from 1 lakh to 8 million। ठीक है, 5 साल में 80 लाख क्रिएटर इंडिया में आ गए। अब वो 80 लाख का जो फिगर है वो बहुत बड़ा फिगर है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत से ऐसे हैं जो उसको एज अ बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो उसको एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हैं, लेकिन द ग्राफ इज ऑलवेज ग्रोइंग। इंटरनेट इज अवेलेबल एवरीवेयर, मोबाइल एंड स्मार्टफोन इज अवेलेबल एवरीवेयर। आज अगर हम 2024 की बात करते हैं, दिस फिगर ऑफ 80 लाख इज नाउ मोर देन 1.5 करोड़। सो क्रिएटर्स आर ऑलवेज इवॉल्विंग, क्रिएटर्स आर ट्राइंग टू कॉपी स्टफ, क्रिएटर्स आर सीइंग कि यार वहाँ से कुछ तो फैन फॉलोइंग मिल रही है उस आदमी को, तो मेरे को भी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू क्रिएट द कंटेंट, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। उसको एज अ बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत से क्रिएटर सिर्फ लगे हुए हैं कि हम कंटेंट क्रिएट करें, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। सी, इफ द क्रिएटर्स आर ग्रोइंग, डेफिनेटली द ऑडियंस इज ऑल्सो ग्रोइंग। राइट। हाँ, अब जब ऑडियंस ग्रो करती है तो आप अपनी स्पेस बना लेते हो। यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। राइट। स्पेस बन गई तो डेफिनेटली बिजनेस भी बन ही जाएगा। ओके, सो अगर कोई ऐसा है जो क्रिएटर बनना चाहता है और कुछ ओरिजिनल पीस ऑफ कंटेंट बनाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसे? हाउ डज दैट पर्सन फाइंड इट? देखो, ओरिजिनल तो कोई भी नहीं बनाता,
ठीक है. आई बिलीव दैट हार्डली 1% ऑफ क्रिएटर्स आर देयर जो ओरिजिनल पे एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर करते हैं. बीइंग अ क्रिएटर नोबडी नोज कि क्या काम करने वाला है. किसी को नहीं पता. ठीक है. सो दिस आई बिलीव दैट ओनली 1% ऑफ क्रिएटर्स आर देयर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो खुद का कंटेंट बनाने पे बिलीव करते हैं. बट रिमेनिंग 99% क्रिएटर आर समथिंग की कॉपी पे करते जा रहे हैं. दे जस्ट आर सीइंग द अदर क्रिएटर्स. आई रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी शायद से बताया था. आई फॉलो अ गाय, आई डोंट रिमेंबर द नेम. उन्होंने एक स्टोरी डाली थी अपने ही एक कोई इंस्टाग्राम रील की थी इन विच दे शोड दैट इट वाज हैविंग 6 to 7 million views. And there was another video in that same story. They were showing that thing, and that another creator copied their content, and that particular video was having more than 10 to 12 million views. So the original has lesser views than Yes, the copy. yes. So it happens, and this is the bad part of the content creation. You can see it very easily on social media. And algorithm is something कि आप अगर एक टाइप का कंटेंट इंस्टाग्राम पे देखोगे, there is no big deal कि आपको थोड़ी देर बाद उसी टाइप का कंटेंट वापस देखने लग जाए. You will be like अभी तो मैंने देखा था. But that same content is in front of you with a different creator. Yeah. So original content बहुत कम है content सोशल मीडिया पे. And creators are trying to copy the stuff because they don't want to give efforts of experimenting. उनको ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए, उनको ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे हैं. वो ये देख रहे हैं कि सामने वाले ने ये वीडियो बनाया, इस पे इतने व्यूज़ आ गए, चलो मैं भी ये क्रिएट कर लेता हूँ. Have you seen the Toba reels? हाँ, yes. So that is the trend of the hour and it's very easy, right? अभी 4 लोग मिलके करेंगे और फिर वो फेमस हो जाएंगे और वायरल हो जाएंगे. So that's how social media works these days, right? I believe this is the dark part of social media. कि इसका प्राइस पे करता है ओरिजिनल क्रिएटर जो मेहनत कर रहा है. लेकिन द कंटेंट इज बीन वर्किंग फॉर एनी डिफरेंट क्रिएटर. उसका फायदा कोई दूसरा उठा के ले जाता है. दैट इज द बैड पार्ट एंड यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. Content creation is maybe not completely, but it's also a lot about the money. Yes. यूट्यूबर्स को यूट्यूबर मतलब बनना है और फिर सबसे पहले चैनल मोनेटाइज करना है. तो अगर हम एक बड़े क्रिएटर नहीं हैं तो फिर हमें वो पहला काम कैसे मिलेगा? हाउ डू वी गेट इनटू दोज बिग ब्रांड डील्स और हाउ डज द फर्स्ट डील हैपन? देखिए, आई बिलीव दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग योर ओन कोर्स. फ्रॉम वेयर आई पर्सनली स्टार्टेड, आई रिमेंबर दैट it was a phase of COVID. I had nothing to do and I stepped into the social media world. My wife motivated me कि यार तुम ये कर सकते हो and all. I stepped into the social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, and I realized very soon that it's not going to work like as it seems to be. आप उस पर कंटेंट क्रिएट करो और आपको 1 महीने 2 महीने या मे बी 6 महीने में पैसे मिलना शुरू हो जाए. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. नो क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड इज गेटिंग मनी जस्ट बाय क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लाइक 4-5 months. ऐसे तो नहीं होने वाला है. एंड आई वॉन्टेड टू make money, so that was my only main purpose. And I started exploring new and new things on social media. You have the power of Google. You have things in front of you. You just need that kind of promptness कि हाँ मेरे को करना है. So I started by creating my own course content on Udemy. Okay. So there are various platforms on social media or on internet mainly, like Udemy. There are platforms like Skillshare. I started by creating my own course of personality development. Create your own course and you can publish them on these platforms. It is free of cost. Okay. And the moment you will start gaining the traction, people are going to buy your course. Definitely these platforms are going to reimburse you within 30 days. Acha. So the first month yes, you will so get if your payment. course is being sold out, if your course is good, if your content is good, and for the platforms like Udemy, it is a very good platform. They are providing skills for every sector. Acha. So the point is that being a creator, you have an opportunity to create your content for every sector as well. Fintech, you can create content. Personality development, art, anything. You can create your own course for maybe like 1 hour, half hour, maybe for 2 hours in a video format. You just upload your course on Udemy. Nobody is going to charge you. Achha. And if your course is being sold out, Udemy is going to pay you for that thing. So it is a one good source of creating Acha. a business by creating content. Then definitely you can approach some agencies. It's like Finnet Media. It's like Pixel Creations. So these agencies are there for you, but they'll ask you
for your fan base. हाँ, अच्छा, So वहाँ कुछ एजेंसीज के लिए आपको फैन बेस होना फैन जरूरी बेस है। मिलना चाहिए. सी एजेंसीज आर मेनली मनी माइंडेड. ठीक है, वो आपका फैन बेस देखेंगी, उसके बाद आपको काम देना प्रेफर करेंगे. वो रिस्क एनालिसिस करते हैं ना अपने तरफ से भी कि एग्जैक्टली. बहुत से क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनके 10,000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन जिनके कुछ व्यूज आ गए कुछ पर्टिकुलर वीडियोस पे, मे बी 10 million 12 millions और समथिंग लाइक दैट, एंड दे अप्रोच दोज एजेंसीज एंड दोज एजेंसीज आर रिजेक्टिंग देम लाइक एनीथिंग, बिकॉज दे आर नॉट स्टूपिड. They are there to pay you, so they'll extract your entire page. They'll look into the insights and all. So you need to have certain level of fan following, but if Okay. you want to create a business apart from this fan following point of view, so you can approach these platforms like Udemy, Skillshare, and they are going to pay you a good amount. The way of learning things is also changed. People are having the power of internet, people are having the power of social media. So it's something that I'm sitting in a XYZ city, anywhere in this world, anywhere, it's like a small town in India, or it's like in Bangalore or Mumbai. I just want to learn a new skill. Let's say I want to learn guitar. Let's say I want to learn about mutual funds. I don't have to find a tutor nearby my house. I don't have to pay them a big amount to teach me. You can just go to the platforms like Udemy. You can just go to the platform like Tutorials Points and all, and you can just pay hardly 500 rupees. You can buy a course and you can learn from them. And Right. this way of empowering yourself is very big, and it is very impacting. So if these platforms are there for you as an audience, then definitely these platforms are very good source for creators as well to make money. राइट. And for a creator like me who is working in the content creation sector in an indirect way, I'm working for corporates. These platforms are a way of source for me. So this is the best way as a creator you can earn a business, or you can Right. create a livelihood for yourself. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स बनानी पड़ेगी, आप वायरल हो जाओगे तो आपके पास अपने आप डील्स आएंगी. बट आई थिंक देयर इज अनदर वे टू डू दिस. इनफैक्ट हम खुद भी being a part of the Seco team, we also look for a lot of creators. तो we have even found creators of LinkedIn. ऐसा लगता है कि LinkedIn प्रोफेशनल ही है और वहाँ पर तो कौन ही कंटेंट क्रिएटर है, बट है लोग, और देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू पुट आउट योर वर्क, और आई थिंक हमको एक्सप्लोर करना चाहिए. हम नहीं करते. देर आर मेनी. LinkedIn is very powerful. Very powerful. मतलब yes. I believe that people of India, especially the creators of India are underestimating the power of LinkedIn. या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वीडियोस बनाओगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या आप वीडियो बनाओगे और XYZ ब्रांड आपको पैसे देगा उस चीज़ के, तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है. देखो, इन्वेस्टमेंट तो सब जगह करना पड़ेगा. आप Right. आज कोई बिजनेस लेके बैठो, ठीक है, आप कोई शॉप डालना चाह रहे हो, आप कुछ भी करो, आप अगर जॉब करना चाह रहे हो, तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा. राइट. एंड फॉर दैट एजुकेशन यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. आप कोई बिजनेस करो, आपको कोई जॉब शॉप डालनी है, कोई शोरूम डालना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर. यू हैव टू बाय द स्टफ, शॉप पे इन्वेस्ट करना है, वेयर हाउस पे करना है, मटेरियल एक्वायर करना है, एसेट्स एक्वायर करने हैं. सो आई बिलीव कंटेंट क्रिएशन इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू इन अ बिजनेस. एक वीडियो, हाँ. यानी कि मोबाइल फोन, एक माइक, मे बी थोड़ी सी लाइट्स. हाँ. That is the lowest investment a person can do to start a business of content creation. सही That बात. is the best part. उसमें भी आई थिंक लाइक लाइट्स के लिए भी a lot of people start with natural light. It is दिन में natural जाए- lights work like a charm. हाँ, yeah. Go That out is the best part. Go out and shoot at a pretty location. एक सोच बना रखी है, एंड आई बिलीव कि जिन लोगों ने भी ये सोच बना रखी है, ये वही क्रिएटर्स हैं जो या तो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, या जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, कि हमारे पास अच्छा माइक नहीं था इसीलिए हम नहीं हो पाए, हमारे पास अच्छी लाइट्स नहीं थी. ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कोई आज तक लाइट्स नहीं ली होंगी, नॉर्मल नेचुरल लाइट्स में बैठे हुए हैं, दे हैव अ फॉलोइंग ऑफ मिलियंस, कर रहे हैं ना वो भी. तो द पॉइंट इज कि आपका बर्निंग डिजायर कितना है, आपका ड्राइविंग फोर्स कितना ज़्यादा हाई है, कि आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो. Right. आप अगर जेन्युइनली करना चाह रहे हो तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. Do you think is your goal in terms of continuing? आप कंटिन्यू करना चाहिए. You're passionate about content creation. अगले 3 साल में, 5 साल में, what's your plan? Where सी do you want to- इनिशियली मैंने आपको बताया कि मैं इनडायरेक्ट फॉर्म का एक क्रिएटर हूँ, ठीक है. आई वर्क फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, आई वर्क फॉर सीको लाइक दैट, बट आई डोंट हैव माई ओन ब्रांड वैल्यू, ठीक है. आई इनिशियली स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया. I
started creating content on YouTube, and I started creating content on Instagram and all. But I realized one thing ki at that particular point I have to be money oriented. So I started working for Udemy, then I started getting clients, corporate clients. I started working for Sequo and all. But there was a moment when I realized that I have to create my own brand value. I am working in an indirect manner as of now, but it is not going to help me on a long run. So I should be having my own brand value. If I share you my own data, let's say that I get calls from, let's say, 10 different brands or 10 different companies who are asking me to create the training content for them. I get 50 to 60%. But I started working that where is the gap that वो 40% लोग मेरे को काम नहीं दे रहे हैं. ऐसा क्यों? सो वहाँ मैंने गैप फील करा कि आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू नहीं है. तो एज अ क्रिएटर आपको अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू तो बनानी पड़ेगी. और जब मैं ब्रांड वैल्यू की बात करता हूँ, यानी कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी खुद की एक फैन फॉलोइंग होनी चाहिए ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम. आपकी फैन फॉलोइंग आपकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करती है. नो वंडर आपका काम कितना ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कल आपसे एक बेटर क्रिएटर आ जाएगा, आपका काम लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़रूरी है. एज अ क्रिएटर आई सजेस्ट कि अपनी ब्रांड वैल्यू पे हमेशा फोकस करते रहें. दैट्स अ नेक्स्ट मूव. लाइक इन नेक्स्ट maybe 2 to 3 years, I'm focusing in a very different manner, in a commercial way, to create my own content. And I am not doing it as a hobby. I'm taking it as a business point of view, as a professional point of view, and I have my own tricks, I have my own strategy, right, which I'm going to follow. And that's it. So that this is something I'm going to do it for the next 2 to 3 years. So what's interesting to me is ऐसा होता है कि जब हम किसी से भी बहुत ही न्यू एंड अपकमिंग क्रिएटर जिससे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार फॉलोअर्स चाहिए या मोनेटाइज करना है या ये वो. तो ऐसा होता है कि लोगों के लिए फेमस होना पहले आता है और फिर आता है पैसे. मैंने उल्टा करा. What's interesting for you is you have monetized it first and then you're like हाँ अब इसको मेंटेन करने के लिए, इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, आई नीड टू क्रिएट माय ओन ब्रांड इमेज, व्हिच इज ग्रेट. देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल. कोई इंसान आपको बोले कि आप ऐसा करके आप अच्छे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, नहीं हो सकता. द ओनली वे टू क्रिएट गुड कंटेंट और टू गेट गुड ऑडियंस इज बाय क्रिएटिंग अ जेन्युइन कंटेंट. राइट, दैट इज द ओनली थिंग. आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है. आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. दोनों में बहुत फ़र्क है. आज मेरे साथ काफ़ी एडिटर्स हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको भी यही चीज़ बोलता हूँ, मेरा काम कंटेंट क्रिएट करना है. एंड बाय क्रिएटिंग कंटेंट यानी कि टू राइटिंग द गुड स्क्रिप्ट्स, द राइटिंग अ गुड कंटेंट जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ. सो दिस इज 50% आई एम डूइंग. रिमेनिंग 50% इज द वर्क विच माई एडिटर हैज टू डू. राइट, जो उसको सही तरीके से एडिट करके बेटर बना सकता है. मार्केट अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी क्लटर्ड, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. आपको अच्छे वीडियोस बनाने हैं तो अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी. आज के टाइम पे आप अगर इंस्टाग्राम को ओपन करके देखो, आपको 60 सेकेंड्स का वीडियो, आई एम अ क्रिएटर सो आई नो कि उसमें कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है उसको बनाने में. सो यू हैव टू बी जेन्युइन एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच अगेन. राइट, टाइम देना पड़ता है और लोगों में पेशेंस नहीं है. आई सीन दैट थिंग. हाँ, दैट्स ट्रू. ठीक है, उनको लगता है भाई उसके तो 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, मे बी 1 लाख हो गए, मेरे को भी चाहिए. और वो 1 लाख की जर्नी देख के आप 0 से शुरू करते हो. बहुत से लोग तो 100 पे पीछे हो जाते हैं. आई हैव सीन पीपल लाइक दैट. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, इट्स अ लॉन्ग टर्म थ्योरी. ठीक है, आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड इट्स वन एंड द सेम थिंग. आप टाइम इन्वेस्ट करो या पैसा इन्वेस्ट करो, इट्स बोथ सेम. इट टुक अस ऑलमोस्ट 2 years to come from 0 to around 25-30,000 on the official Sequo app का जो Instagram है. And 6 महीने में, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर we have gone from 30 something to 100K. I'll share one more thing that I am pretty much sure कि वो जो 30K से 100K थे उसमें आपका कंटेंट भी लिमिटेड होगा. हाँ, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट. क्योंकि हम एक ब्रांड है तो हमारे पास वो मशीनरी हम एस्टैब्लिश करते हैं कि हर हफ्ते ये तो जाना ही है. बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर शायद वो मेंटेन करना भी मुश्किल है. बट नहीं, जैसे व्हाट माय पॉइंट इज कि देखो, आपको अगर 0 से
एक फिगर अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, आपको 0 से अगर 50 तक पहुंचना है तो यू हैव टू गिव 100% एफर्ट्स, राइट, ठीक है. एंड व्हाट आई मीन बाय एफर्ट्स इज बाय पब्लिशिंग द वीडियोस. अच्छा, ठीक है, आपने रोज एक वीडियो डाला, हर दूसरे दिन वीडियो डाला, हर तीसरे दिन डाला, मे बी वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जो भी हुआ. सो यू गिव 100% एफर्ट्स टू रीच 0 to 50. ठीक है. नाउ 50 to 100 द जर्नी विल बी शॉर्ट एंड द एफर्ट of 50 to 100 will be only 50%. अच्छा, हाँ, वन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट इज कि जब तुमने 0 to 50,000 के लिए बहुत एफर्ट मारा, क्योंकि तुम जीरो थे, जब तुम जीरो थे Yes, तुम्हें कुछ नहीं yes, आता yes. था, जब तक तुम 50,000 पहुंचे तुमने इतनी मेहनत कर ली है कि उसके आगे वो एफर्ट ही कम लगता है. सेम काम करने में एफर्ट कम लग रहा है, राइट. मे बी इफ आई स्टार्टेड टू क्रिएट अ वीडियो, मुझे लगेंगे 4 दिन, और फिर बट मैंने इतनी मेहनत करी, 6 महीने 1 साल की, मैंने 100 वीडियोस बनाए और मुझे 4 दिन लगते गए, बट इवेंचुअली इट्स गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग मी 2 days एंड मे बी इवन 1 day. मेरा एफर्ट तो वैसे भी कम होगा बिकॉज नाउ आई हैव बिकम एक्सपर्ट इन दैट आर्ट, है ना. तो वो वाली बात भी है. बट ऑफ कोर्स हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि इंस्टाग्राम पे तो ये मैंने देखा है. It's all algorithm. Trust me, it's all algorithm. हाँ, You know, algorithm respects your effort. राइट, A person cannot see that thing. Algorithm respects your efforts. इंटरेस्टिंग. And algorithm indirectly or directly, technically, fundamentally, I don't know, but I have noticed that thing. I have sensed that thing, that it is respecting your efforts. It should be genuine. If you are not genuine, that algorithm is not going to respect you. That algorithm is not going to support you. You Right. just keep on publishing the content. You copy the content. You paste the content. Maybe algorithm is going to support you right now, but it is not going to help you every time. ऐसा कभी हुआ है कि आपने यू डिसाइडेड कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, और कभी तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया वेयर यू आर वेरी वेरी डिमोटिवेटेड कि यार ये मेरा सबसे लो है इन द लास्ट 3 I've years? always trust me. मतलब when I am saying always is about in a direct manner when I'm हाँ. publishing content for YouTube और हाँ. Instagram. कि देखो क्या होता है, आप कंटेंट बनाने पे बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, तो जब उस मेहनत के रिटर्न्स आपको नहीं मिलते हैं ना, तो आपको दिक्कत आती है, यू गेट डिमोटिवेटेड. या, ठीक है. तो एज अ क्रिएटर मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो. और हर क्रिएटर ये चीज़ नहीं समझ पाता है. सो हाउ डू यू कीप गोइंग? व्हाट इज योर ड्राइविंग I have my source of energy is my wife. She is the one who is always, saw this part of me. She is the one who has always, pushed me, motivated me, inspired me कि तुम करो. तो ठीक वो है. आपका सपोर्ट सिस्टम है. हाँ, इस चीज़ में तो है. मतलब शी इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी, एज आई हैव टॉक्ड राइट नाउ, कि मैं अपने सोशल मीडिया को वापस से रीस्टार्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की. सो आई स्टार्टेड गेटिंग दिस थॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट इट अगेन टुक मी 5 to 6 months कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ. भाई मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आ रहे हैं. आई वॉज हैविंग माई ओन थॉट प्रोसेस, बट इट वॉज माई वाइफ हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि तुम्हें करना चाहिए. यू हैव दैट स्किल्स, यू हैव दैट थॉट प्रोसेस, यू हैव दैट टैलेंट कि आप करो उस चीज़ के लिए. सो शी इज़ माई ड्राइविंग फोर्स इन दिस थिंग कि आप कर सकते हो, करो. इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोज आएंगे, ऐसा जरूरी 100% नहीं आएंगे, है. 100% आएंगे, 100% आएंगे. बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ गोइंग. बहुत बार ऐसा होता है, आई हैव सीन क्रिएटर्स लाइक वो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से 50 वीडियोस पब्लिश कर दिए, 51 वीडियो ऐसा हुआ कि इट फ्लाइड लाइक अ रॉकेट. बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, दे आर मोटिवेटेड, दे आर इंस्पायर्ड. फिर उन्होंने फिर बाकी के वीडियोस क्रिएट कर, उस पर कोई ट्रैक्शन ही नहीं आया. अगेन वो जैसे मोटिवेशन ऊपर गया वैसे ही नोज डाइव होके नीचे आ गया. तो ऐसा होता है, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है कंटेंट क्रिएशन जर्नी का. यू डोंट नो हाउ व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. राइट. एन एक्सपेरिमेंट इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि आपको उस पर कंटेंट बनाना पड़ेगा, आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहो. मार्केट बहुत बड़ा है, ऑडियंस हर तरह की है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. आप बोलो कि मैं ये चीज़ क्रिएट करूं और ये काम कर जाए, नहीं हो सकता. बट 10 चीज़ें करो, 10 चीज़ें कुछ तो करनी, काम आपके पास करेगा. और कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज द बैड पार्ट, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. समटाइम्स कॉपी पेस्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. या, बहुत से क्रिएटर होते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी काम नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी काम नहीं करता है. तो आप क्या करोगे? बहुत से क्रिएटर होते हैं उस मोमेंट पे आके गिव अप कर देते हैं. आप क्या करोगे? गिव अप कर दिया, इतनी मेहनत जो आपने करी उसका क्या? मैनेज्ड. तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. राइट. आप कंसिस्टेंट हो, आप जेन्युइन हो, आप लॉन्ग टर्म पे
जाओगे, इट इज़ फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, पक्का है ये चीज़. बट पेशेंस रखना पड़ेगा. अगेन आई हैव सीन मैनी ups and lows. You know, I started creating content for social media, for YouTube, for Instagram, and it was not working for me. I remember the day, that was the first day I started creating video from my mobile phone. It was a front camera, it was a गेस्ट रूम ऑफ माई हाउस. गर्मी का टाइम था, वहाँ AC लगी है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ AC भी काम नहीं कर रही है. ठीक है, अब गर्मी में काम कर रहे हैं. 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए इट टुक मी 2 hours. 5 मिनट के वीडियो में देयर वॉज मोर देन 20 टेक्स. उस वीडियो को आज भी मैं शायद नहीं देख पाऊंगा. मैंने क्या बनाया है, ठीक है. एंड टुडे इज द डे, 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मेरे को सिर्फ 5 मिनट 1 सेकेंड लगता है, नॉट मोर देन दैट. सो माई जर्नी फ्रॉम हेयर टू हेयर इज़ वेरी बिग. आई हैव सीन वेरी अप्स एंड डाउन्स. सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नहीं चल रहा है. देन यू हैव टू फेस सोसाइटी एज वेल. राइट, हाँ. क्या कर रहे हो, वीडियोस क्रिएट कर रहे हो. अच्छा, सोसाइटी की एक थॉट प्रोसेस है कि आप पहले तो वो आप पे हंसेगी. ठीक है, आप नोटिस करना ये चीज़. आप पहले बोलो क्या कर रहे हो, आप पहले तो बोलने में शर्माओगे इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. ठीक है, फिर आप उनके लिए उनको थोड़ा बहुत सरपास कर भी लोगे, फिर आप कंटेंट क्रिएट करोगे यूट्यूब के लिए. तो इसका एक प्रॉब्लम है, पता है, आप छुपा नहीं सकते हो. समझ रहे हो, आपने यूट्यूब पे कंटेंट डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, वो सब दिख रहा है. अब आपके पास अगर व्यूज नहीं आए तो जो आप पे उंगली उठा रहे थे वो आप पे हाथ उठा लेंगे बस. मारेंगे नहीं, बट यू नो दे आर गोइंग टू यू नो स्लैश यू डाउन. हमने तो बोला था, मे बी पीठ पीछे, मे बी फेस पे. और जब पीठ पीछे बोलते हैं ना, तो यू कैन फील दैट वाइब. राइट, आई हैव फेस्ड दोज थिंग्स इन माई ओन लाइफ. सो दोज वर माई डाउन्स. मतलब आई हैव सीन पीपल हु वर नॉट रिस्पेक्टिंग मी. आई हैव सीन पीपल जो मेरे साथ बैठते हैं लेकिन दे वर नॉट वैल्यूइंग मी. I know that what's my worth. I know that what I can do. But I have passed that phase as well. कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है. बट डीप इनसाइड यू नो कि आपको ये करना है. देन मैं वापस उठा, वापस अपने आप को मैनेज करा. अगेन माई वाइफ ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि करना है, करना है. एंड टुडे इज़ द डे जहाँ पे आज भली मेरे पास एक ऑडियंस नहीं है, मेरे पास एक फैन बेस नहीं है, बट आई नो दैट आई एम अर्निंग. And directly or indirectly people are seeing that thing. And they are the same people who are now respecting me. So that is the hard part of society. कि वो आपको गिराने में भी मेहनत करेंगे और आपको उठाने भी मेहनत करेंगे. उंगली तो आप पे हमेशा उठाने वाले. ठीक है. या एज अ करियर आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. Right, and you obviously, that's the first thing. Second thing is you always have to be consistent, authentic, and you have to keep at it. Third thing is it's a fact of life कि life fair नहीं है, ups and downs आएंगे. But अगर आपके पास एक motivational force है, it could be your family, it could be your passion to create that content, it could be any one of those things which will keep you going. So that's the third big takeaway. And obviously we talked a lot about कि practically how is it possible. So the most interesting thing to me was when you started creating content, your first milestone was earning, and it was not and it was not and is still not about just कि हाँ ठीक है मेरे को लोग पहचानते हैं या मेरी ये वीडियो वायरल हो गई थी. That's not your story. Your story is unique, and I think for every content creator their story is unique. उन्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है, and for that ऐसे बोलते हैं ना, गुर्दा चाहिए. आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बिकम. एनर्जी भी नहीं, मोटिवेशन भी चाहिए, पॉजिटिविटी भी चाहिए, और बहुत वो ड्राइव चाहिए. देखो, आई बिलीव इट्स अ जर्नी. और ये जो सब मैंने आपके साथ शेयर करा, अगर मेरे को लगता है मेरी जर्नी ऐसी है, तो आई बिलीव कि सबकी जर्नी ऐसी है. ठीक है, आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स. राइट, ठीक है, आप सोसाइटी को फेस कर रहे हो, आप अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हो, आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, तो यू सी प्लस एंड डाउन, माइनस. ठीक है, आपको ऊपर नीचे सब फेस करना है. एंड आई बिलीव इट इज़ अ जर्नी. राइट, होगा, सब होगा. एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू कंसिस्टेंट. एंड टू ऑल द लोज जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, टू ऑल द नेगेटिविटी जो आपको फेस करनी है, टू ऑल द डीमोटिवेशन जो आपके पास हमेशा आता रहेगा. यू नो, डीमोटिवेशन इज समथिंग वो इट्स लाइक अ मैग्नेट. आता जाएगा. ठीक है, आपसे चिपकने की कोशिश करेगा. तो यू नीड वन गुड रीज़न कि आपको उसको सरपास करना है एवरी टाइम.
Right. एक बार आइए, चलो ठीक है भाई साहब, हम फिर से खड़े होंगे. हाँ ठीक है. आई रिमेंबर इट वाज 2015. आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. हाँ इट्स अ गुड और बैड, आई डोंट नो. हम्म, मेरे को न्यूज़पेपर चाहिए. मैं यहाँ हूँ या मैं कहीं भी हूँ, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, हाँ मेरे को न्यूज़पेपर चाहिए. अब न्यूज़पेपर मैं ई पेपर पढ़ लूँ या समथिंग. तो and why I'm saying this in an elaborated manner is something I want to tell public हाँ that there are sources from where you हाँ can earn positivity. हम्म, ठीक है. What I have, my source is, मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ. हम्म, फ्रंट पेज दैनिक भास्कर लिखा रहता है, उसके बाजू में एक सुविचार लिखा रहता है. हम्म, There's a quote. okay. ठीक है. And I start my day with that thing. मैं हाँ, बेड पे होता हूँ. आई रिमेंबर, मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में हूँ, लेट हो गया है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है. द फर्स्ट थिंग आई ओपन फ्रॉम इन माय मोबाइल फोन इज दैनिक भास्कर का ऐप खोलूंगा, उसके अंदर वो न्यूज़पेपर ओपन करूंगा, सबसे पहले वही सुविचार पढ़ता हूँ. हम्म, तो यू आर पोरिंग सम पॉजिटिविटी इन योर माइंड. हाँ, the moment you wake up. ठीक है. द हाँ, मोमेंट यू वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू आर, मतलब आप पूरे फ्रेश हो उस टाइम पे, आपका ब्रेन पूरा फ्रेश है. एंड यू नेवर नो कि वॉट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. हम्म, ऐसा नहीं है कि साल के 365 दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और 365 दिन आप जो पॉजिटिव थॉट्स ले रहे हो आपके अंदर आ ही जाएंगे. हम्म, बट यू हैव टू कीप ऑन कंसिस्टेंट इन दिस थिंग एज वेल. हम्म, आप पढ़ते रहो. तो इट वॉज द ईयर ऑफ 2015 एंड मेनली इट वॉज द ईयर वेयर आई वॉज स्टार्टिंग माई जर्नी. एंड देयर वॉज अ थॉट कि आप तब नहीं हारते हो जब आप गिर जाते हो. हम्म, आप तब हारते हो जब आप उठना बंद कर देते हो. हाँ, दैट वॉज द थिंग जो हमेशा मेरे अंदर आ गई. मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, इतने देखे हैं. मैं अपने फैमिली बिजनेस में गया. ठीक है. आई हैव अ ह्यूज फैमिली बिजनेस ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है. आई एम इन रियलिटी सेक्टर, आई एम इन फाइनेंशियल सेक्टर, आई एम इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. मैनेजिंग पोर्टफोलियोज एज वेल. आई एम इन दिस कंटेंट क्रिएशन सेक्टर एज वेल. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. एंड देयर वॉज वन ड्राइविंग फोर्स कि यार उठना बंद मत कर. ठीक है. गिर गए कोई बात नहीं, आज गिर गए, कल नहीं उठना है, परसों नहीं उठना है, एक दिन फिर से उठेंगे. हम्म, ठीक है. सो बीइंग अ क्रिएटर आपके पास बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं. ठीक है. आपके पास जितनी नेगेटिविटी आए कोई बात नहीं, आपको रिलैक्स करना है, आपको टाइम लेना है, आप ले लो. लेकिन अगर आपको जेन्युइनली करना है, वापस उठो, वापस मेहनत करो, वापस काम करो. यू नेवर नो कि आपके साथ क्या काम कर जाए. right. सो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अ क्रिएटर व्हाट दे कैन डू. To keep going. कीप गोइंग. ठीक है. All right. Thank you so much, Lavesh. I think it was a great conversation. I enjoyed the conversation a lot.